Sir, very low students had joined. Anyways, I am recording the lecture. Those who missed, they can listen to recording. Yes, sir. People will join in 5 minutes. Sunday is little slow day. Sunday is a slow day. Slowly they will join. Good morning, sir. Very good morning. So we were discussing synopsis 2 about the line segment. So line segment is a part of line and it has two endpoints, like here segment AB. We denote it like this, segment AB or segment BA. It has length but it has no direction. Then one shortcut we saw that if there are n points given, by those n points, number of line segments determined are n into n minus 1 by 2. Okay. Here you just be careful that whenever the number of points are given, you have to note whether the end points are to be considered in that n or no. अगर हमें ऐसा पूछा गया कि find out the number of line segments determined by 10 points, so that means directly we have to take value of n as 10, and our formula is number of line segments is n into n minus 1 upon 2. So 10 into 9 upon 2, like that. 45. Yes, answer will be 45. Next, simple definitions are given how to measure the line segment. So first of all, length of line segment. So the measure of the line segment, which will be positive, or the distance between the endpoints A and B, is called as length of line segment. This length can be denoted by three symbols total. Length of line segment, say, let us say this, there is segment AB, so it is denoted by either length AB, length of segment AB, or it is denoted by distance between points A comma B, or we simply write it as AB. Okay, all these are notations just to represent the length of line segment AB. और हमारे वर्कशीट में ऐसे भी दिया है AB bar, that's all right. Even if you don't write bar, that is also all right. Simply line segment AB. Next, comparison of line segments. तो कंपेयर करने के लिए आपको बस चेक करना है कि उसका लेंथ कितना है, that's all. So when we want to do comparison, then let us say if I have segment AB, segment AB's length is, say for example, 100 centimeter, and segment PQ, its length is 29 centimeters. So we can clearly say segment PQ is smaller than segment AB. Okay, by looking at the length we can say. But then how to measure the length? So we can use either ruler. Sometimes even if we just want to compare the segments, so we need not use even ruler. रूलर यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेंटीमीटर पता चलेगा या फिर मिलीमीटर में भी पता चलेगा. But even if we use divider or compass, still we can compare two line segments. But for that, you are supposed to be given the line segments. Line segment दे रहने चाहिए. Of course, ऐसे line segments हमें दिए हैं, तो फिर हम डिवाइडर ले सकते हैं या फिर कंपास ले सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Generally, you should use ruler only.
It is better to use the centimeter or millimeter as the measurement, ताकि वो exact answer आ जाए which segment is smaller, which segment is larger. Next, congruent line segments जिनका length equal होगा, they are called as congruent line segment. Congruent means equal. तो segment में क्या equal होगा? उन दो segments का length. कॉन्ग्रुएंसी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इक्वल टू के ऊपर ये सोया हुआ यस, ठीक है. सो दिस मीन्स सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट सी डी, दैट मीन्स द लेंथ्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल. नाउ मेजरमेंट units, different units we can use. So this table is given, you all know this already. Do I need to explain this table? No, sir. No, sir. Just remember the relation with meter of every single unit. Millimeter, it is 1 upon 1000 meter. Centimeter 1 by 100 meter. Of course 1 by 1000 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 raised to minus 3 meter. This can be written as 10 raised to minus 2 meter, 10 raised to minus 1 meter, 10 meter. 1 decameter means 10 meter. This is 10 raised to 2 meter. 100 means 10 raised to 2. 1000 means 10 raised to 3 meter. 10 के पॉजिटिव निगेटिव पावर्स भी आप यूज कर सकते हैं. ओके. So remember all these units and relation between them. We may have to compare them. Then the next concept is betweenness. This is very important. Betweenness. इसके टोटल 3 केसेस आते हैं और ये आपको नोट्स निकालना है नोटबुक में आपके. सो यू हैव टू फर्स्ट लिसन अटेंटिवली. केस नंबर 1, 3 points are collinear. In bracket, they do not form triangle. See, we are given here total 3 points, and those given 3 points are points A, B and C, capital A, B, C. These are 3 given points. Now case 1 is all those 3 points could be collinear, but how to identify whether they are collinear? Collinear means they will lie on a same line. That means they will not form a triangle. They do not form a triangle. They will be like this on one line, say points A, B, C, and the identification for that is first of all diagram. अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है तो कम से कम डिस्टेंसेस दिए रहने चाहिए, ठीक है. सो इफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस which is AC here is a sum of remaining two smaller distances, that is AB and BC, then we say that these 3 points are collinear. Okay, for example, let's say AC is 15 maybe centimeter. AB unit I am not writing, just remember that there will be some unit, millimeter, centimeter, kilometer, etc. AB is 7 and say BC is 8. So we can clearly see here that AC is the largest distance and AB and BC. So total AC is 15 and AB plus BC is 7 plus 8. That is also 15. That means point B is exactly in between A and C. This distance will be 7, AB and BC will be 8. All right. So this is the way to identify whether the 3 points are collinear. अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बिटवीननेस. तो आपको आइडेंटिफाई करना है
कि इन तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में आएगा, बिटवीननेस. So how to identify that? Just first of all, this condition should be satisfied that larger distance should be equal to sum of remaining two smaller distances. और फिर between वाला पॉइंट कौन सा है, या फिर दो एंड पॉइंट कौन से है और उसके बीच में कौन सा पॉइंट है, ये तीनों चीजें अगर जानना है तो बस लार्जेस्ट डिस्टेंस देखने का. लार्जेस्ट डिस्टेंस इज AC. तो ये दो पॉइंट आएंगे ए और सी एज द एंड पॉइंट्स, और जो तीसरा बचा हुआ पॉइंट है दैट इज पॉइंट बी, इट विल बी इन बिटवीन AC. तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि B is in between A and C. Now I am giving second example. You have to identify which point will be in between. Okay. Distance PQ is 14 centimeter. Distance QR is 15 centimeter and distance PR is 31 centimeter. I am sorry, 29 centimeter. Yes, can anybody identify which point will be in between? Q, sir. Q. Point Q will be in between. Very good. Because PR is the largest distance, which is 29, and 29 is actually sum of 14 and 15. So therefore, PQ is 14, QR is 15. That means point Q is in between. Now this betweenness को short में हम ऐसा denote करते हैं, P dash Q dash R. Okay, short में ऐसा represent करते हैं. That means point Q is in between R. Has everyone understood this? Betweenness कैसे identify करने का? Yes, sir. Yes, sir. First thing, larger distance should be equal to sum of remaining two smaller distances. और larger distance में दो point जो use किए हैं, they will be the end points, और तीसरा वाला point between रहेगा. ये था हमारा case 1 when these three points are co-linear. Okay, and of course since they are co-linear they will not form a triangle. Case 2 और case 3 हालांकि हमारे worksheet में नहीं दिया है, but I want to discuss it. Reason is if we together discuss this all three cases, it becomes very easy to remember them for long time. Therefore अब यहाँ पे AC distance जो है I am taking it as smaller than remaining two distances AB plus BC. बचे हुए दोनों डिस्टेंस AB और BC के सम से हम स्मॉलर ले रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा देखो, इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस का टाइटल रहेगा दिस थ्री पॉइंट्स A B C they will be non-collinear and they form a triangle. They will surely form a triangle provided the largest distance AC should be less than the sum of remaining two distances. Now how this is possible? तो पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कोलिनियर आने के लिए लार्जर डिस्टेंस हैज टू बी इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंसेस. लेकिन यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, लेस देन है. तो इसका मतलब surely these 3 points will be non collinear. That is very clear. Now we will see why it is written that they form a triangle. फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं. Let us say distance AC is 10 centimeter, distance AB is 5 centimeter, distance BC is 7 centimeter. आप देख सकते हैं कि AB और BC का सम 12 आ रहा है, ये राइट हैंड साइड 12 आ रहा है, और AC 10 है, तो 10 is less than 12. So that means this condition is getting satisfied. Now there is a method to construct a triangle. Whenever three sides are given to us, what we do first, we draw the largest side first. So here the largest side is AC 10 centimeter. Then from point A I want to locate point B, and from point C also I want to locate point B. तो point B को locate करने के लिए हम सेंटर कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे
and if we take center as A and mark one arc like this, and we will take CB distance, BC distance 7 centimeter in the compass and mark another arc, this will be the point B, and this is how we will surely get a triangle. Okay. तो ये था सेकंड केस जिसमें लार्जेस्ट डिस्टेंस इज लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू, और तीसरा केस ऑब्वियसली रहेगा ये जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन सम ऑफ दिस टू रिमेनिंग डिस्टेंसेस. इन दिस पर्टिकुलर केस एक्चुअली इसका टाइटल रहेगा दे डोंट फॉर्म ट्राइंगल. दैट्स ऑल. कोलिनियर है क्या नॉन कोलिनियर है क्या वो भी हम नहीं बता सकते. नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाई लाइक दैट. ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, कम से कम या तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या तो नॉन कोलिनियर होंगे, लेकिन मैंने टाइटल इतना ही लिखा कि दे डोंट फॉर्म ट्राइंगल. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे इस केस को मैं ब्रैकेट में और एक टाइटल देता हूँ. थर्ड such case is impossible. देखो अभी क्यों इम्पॉसिबल है. AC greater than AB plus BC. ये जो तीसरा डिस्टेंस है it is greater than the sum of remaining two distances. Let me take an example, then it will be more clearer. So let us say distance AC is 15 centimeter, distance AB is 5 centimeter, and distance BC is 7 centimeter. All right, now let us try to construct the triangle. Surely because ये points हम देख के बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC नहीं है, इसका मतलब नॉन कोलिनियर आ सकते हैं. तो हम सोच रहे कि चलो फिर नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल बना के देखते हैं. So let me draw segment AC first because it is largest. So this is 15 centimeter. Now if you थोड़ा लंबा निकालेंगे little 15 सेंटीमीटर के हिसाब से, AC 15 centimeter. Now if you want to locate point B, so we take distance AB in compass, take A as the center and distance will be 5 centimeter, and we draw a full circle of radius 5 centimeter. Okay, ये 5 centimeter वाला एक पूरा सर्कल हमने ड्रॉ किया पॉइंट B को लोकेट करने के लिए. Then we take distance BC in the compass 7 centimeter, take C as the center and draw a circle of radius 7 centimeter. Now you can observe both the circles are not at all intersecting with each other. That means the third point B does not exist only. We will not be able to locate it. Therefore I said such case is impossible and these points will not form a triangle. Okay, तीसरा पॉइंट लोकेट ही नहीं कर पाएंगे हम. AC ग्रेटर देन AB प्लस BC अगर दिया है तो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था हमारा कि AB डिस्टेंस हमने 5 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ किया और BC 7 सेंटीमीटर, तो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला आर्क मिला. लेकिन यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस ही 15 सेंटीमीटर है. एक सर्कल 5 सेंटीमीटर तक अपना काम चलाएगा और ये 7 सेंटीमीटर तक आगे आएगा, बीच में गैप रहेगा यहाँ पे. So they will not at all intersect. That means third point cannot be located only. So this is the third case. तो हमें खाली ये betweenness याद रखना है कि सर सिर्फ थर्ड केस का यूज क्या है? that is for your understanding, कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से केस, इन तीन केस में क्या क्या होता है. तो पहले केस में तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर, दूसरे केस में they are non-collinear and form a triangle, and in third case they don't form a triangle and they are neither collinear. We in this case we can say such case is impossible case only.
Of course, we should say as a title they don't form a triangle, that's all. कोलिनियर नॉन कोलिनियर के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे. जनरली इसको मैंने 2-3 बुक में देखा है, तो इस केस में कोलिनियर नॉन कोलिनियर के बारे में ऐसा बोलते हैं वो लोग कि हियर ABC आर नाइदर कोलिनियर नॉर नॉन कोलिनियर. ये बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा. ओके. नो नो नो, पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर रहता है बेटा. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. डायरेक्ट डिस्टेंस का सम नहीं रहता. प्लीज रिमेम्बर देयर इज स्क्वायर. ठीक है, तीनों कैसे सबको समझ में आ गए क्या? किसी को कोई डाउट? No, sir. Is there anybody Yes, who sir, has any? understood. No, sir. हिंदवी क्या डाउट है पूछो. No, sir. No doubt, I told. नो डाउट. ओके. सो इसके फोटोग्राफ भेज दूं मैं ग्रुप पे बाद में. वन ऑफ यू कैन डू दैट. हाँ सर. ओके. Yes, sir. No sir, you can only send. I will send. Okay, just listen attentively. Try to understand things properly. Yes sir. Everything is written in the worksheet also. Worksheet में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है. Betweenness मतलब क्या? यहाँ पे AB plus BC is equal to AC. इसका मतलब largest distance is sum of remaining two. That means point B is in between AC. आपको याद रखना क्या बोला मैंने कि जो largest distance है वो उसमें जो 2 पॉइंट्स रहते हैं वो एंड में रहेंगे, और जो तीसरा वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो वाला पॉइंट बिटवीन रहेगा. इतना समझने का ट्राई करो. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि AB और BC ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो इक्वल होने के कारण क्या होगा, लेंथ AB एंड लेंथ BC विल बी इक्वल. सो बिकॉज ऑफ दैट B विल एक्ट एज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC. ओके, तो मिड पॉइंट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट मींस इट डिवाइड्स द सेगमेंट इनटू 2 इक्वल हाफ. और we may also say B is bisector of segment AC. Point B is bisector of segment AC. That is also. Next, addition subtraction of lengths of line segment. Of course, a length of line segment का addition subtraction means it is simple addition subtraction of the numbers. Segment AB is 6 centimeter, CD is 4.5. If I want to add them, then 6 plus 4.5, 10.5. If I want to subtract them, subtract the numbers. So simply it is number game. जो numbers है उनका addition subtraction ले लो. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 4 times CD minus 2 times AB. तो बस CD का वैल्यू यहाँ 4.5 डाल दो और AB का वैल्यू यहाँ 6 सेंटीमीटर डाल दो and then calculate. So it is as good as substituting AB as this number 6 and CD as 4.5. तो सिंपल है एडिशन सब्ट्रैक्शन. जैसे आप नंबर का करते हो वैसे लेंथ का भी कर सकते हैं. So based on this part there is exercise worksheet number 2 which is very easy worksheet. Try to solve some questions. You need not solve this particular worksheet in the notebook. Directly solve in the Xerox itself and tick mark the questions. देखो पहला क्वेश्चन. A line has how many endpoints? 2 endpoints. A line extends definitely in how many direction? Both. Both the Both. directions. Name the given line. It can be named as line A, B, C, D, B, C. All of these. This. Sir, all of the above. तो ऐसा ये वर्कशीट आप खुद सर सॉल्व कर फर्स्ट लेना. क्वेश्चन 3 आएगा ना. लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स ना. ओ लाइन सेगमेंट हैज आई टू एम एंड. सॉरी, आई एम सॉरी. लाइन सेगमेंट नहीं दिया यहाँ पे, लाइन है. इट हैज नो एंड पॉइंट्स. थैंक यू, थैंक यू. सर 8 का एक बार बताओ ना. अभी अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस वाले जो क्वेश्चंस है, लगभग कितने क्वेश्चन है देखो, 5, 6, 7, 8, 9.
और ये 10 में फॉर्मूला पूछा, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू एन माइनस 1/2। तो बस यही फॉर्मूला हमें ये बचे हुए 5 क्वेश्चन में भी यूज करना पड़ सकता है। लेट मी चेक, क्वेश्चन 8 में डाउट है आपको? हाँ यहाँ सर आप पे एक करके बताओ ना। यहाँ पे मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ प्रॉपरली, देन यू कैन सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये कंसेप्ट मैं थोड़ा अभी जो वर्कशीट में बताया था उतना काफी नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टली n इंटू एन माइनस 1/2 इतना काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने और एक कंडीशन डाल दिया एक्स्ट्रा। वो कंडीशन है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब कुछ पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं और कुछ पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहते हैं तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बदल जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरा पॉइंट जो मैंने 9th स्टैंडर्ड को पढ़ाया आपको पढ़ा ही देता हूँ। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि उतना डीप में पढ़ाने से कोई पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने 2 अलग अलग केसेस दिए हैं। नॉन कोलिनियर वाले केस क्वेश्चन अलग है और कोलिनियर वाला क्वेश्चन अलग है। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें समझो टोटल 10 पॉइंट्स है प्लेन में, उसमें से 7 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है और जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। ऐसे अगर दिया हुआ है तो फिर कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? नंबर ऑफ लाइंस बोलो या फिर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बोलो। हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन। तो उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस अगर बोला गया तो इन तीनों पॉइंट में से एक ही लाइन पास होता है। अगर हमने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बोला तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट टोटल 3 आते हैं। ये छोटा वाला पहला, ये दूसरा और ये बड़ा वाला तीसरा, 3 लाइन सेगमेंट आते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया, whenever the question is number of lines, then we get only one line passing through 3 collinear points। ये जो 3 collinear points थे उनमें से पास होने वाला one and only one line we will get। तो इसीलिए पहला चीज केयरफुल रहना है कि नंबर ऑफ लाइंस पूछा कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स पूछा। अगर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स पूछे हैं तभी और तभी ही हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी सेगमेंट को अंडरलाइन करके रखो, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, then only we will use this formula n into n minus 1/2। लेकिन नंबर ऑफ लाइंस पूछे और उसमें से समझो कुछ पॉइंट कोलिनियर है तो फिर वो एक ही लाइन आएगा और उसी लाइन को हम 3 बार काउंट नहीं करेंगे, वो लाइन तो एक ही है। सेगमेंट हालांकि 3 है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, एक छोटा सेगमेंट, ये दूसरा छोटा और तीसरा बड़ा वाला, ये पहले पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये फर्क समझ लो। now we are discussing the point of number of lines। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ लाइंस बोल रहा हूं। तो ये थोड़ा डीप में हमें अंडरस्टैंड करना है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू any 2 points out of n given points, of which m are collinear points। अभी इसका मतलब क्या है वो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, m और n के वैल्यूज लेके एक एग्जांपल लेके फिर डिस्कस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। फिर इन जनरल फॉर्मूला में उसका बता दूंगा।
पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट अस से देयर आर टोटल 6 points, out of which 4 points are collinear. ओके, तो वैसे दिखने में ऐसे आएगा डायग्राम. ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे. ओके, एंड 2 points will be somewhere outside here, remaining 2 points. ओके, तो अभी हमें पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ लाइंस passing through any 2 points when there are total 6 points of which 4 are collinear. तो ये कंसिडर किया मैंने क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? टोटल कितने पॉइंट्स? टोटल हमारे पास 6 पॉइंट है, उसमें से 4 कोलिनियर है और बचे हुए 2 पॉइंट बाहर है, उस लाइन के बाहर. तो अभी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने आ सकते हैं? तो देखो, पहले तो आपको पता है कि ये लाइन आएगा, ये काउंट करना पड़ेगा जो चारों पॉइंट से पास होगा. दिस इज लाइन नंबर 1. नेक्स्ट लाइन नंबर 2, इन 2 पॉइंट से पास होने वाला, ये लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ये 4 ये 5. बाद में इस पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करो, इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन करो, इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन करो. 2 पॉइंट ज्वाइन करके हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं. तो ये टोटल मैंने 4 लाइन ड्रॉ किए और ये 4 लाइन, और इन टोटल 9 लाइंस हो गए. 9 लाइंस. सर वो ऊपर की भी लाइन निकलने आती ना 2 पॉइंट को और- ऐसी और हॉरिजॉन्टल. एक, हाँ सॉरी और एक ये लाइन बच गया. सो टोटल 10 लाइंस आर डन. और कोई लाइन पॉसिबल है क्या अभी? नो सर. ठीक है, तो अभी आप ही सोचो, यहाँ पे 6 पॉइंट थे, 4 कोलिनियर थे, 2 बाहर थे, तो थोड़ा सा कम से कम हम एक्चुअल लाइंस ड्रॉ कर पाए. लेकिन मैंने आपको बोला कि देयर आर टोटल 100 लाइंस, मतलब n का वैल्यू जो, सॉरी 100 पॉइंट्स, और उसमें से m इज इक्वल टू 50 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो इतना बड़ा डायग्राम आप ड्रॉ कर पाएंगे क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल. So therefore, we'll try to derive a shortcut formula to identify number of lines passing through any 2 points out of total n given points, of which m points will be collinear. जैसे यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n का वैल्यू 6, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, एंड m का वैल्यू आएगा 4, m मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स. उसमें से कोलिनियर कितने हैं? अभी ये इतना पहले आपको समझना है कि n और m का मतलब क्या है. n मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड m मीन्स आउट ऑफ दैट हाउ मेनी आर द कोलिनियर पॉइंट्स. ये वैल्यूज एक बार फिक्स हो गए. अभी इसका फॉर्मूला देखो. अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस 2 पॉइंट में से पास होने वाले हमें मिलेंगे n इंटू n-1/2. लेकिन उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर होने के कारण m पॉइंट में से पास होने वाले सारे लाइंस जो है वो हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से तो एक ही लाइन पास होता है. तो इसीलिए m पॉइंट में से पास होने वाले नंबर ऑफ लाइंस आएंगे m इंटू m-1/2. उसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसमें और एक +1 करना पड़ेगा. कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई दिस +1? देखो, ये टोटल पॉइंट्स है. सर क्योंकि एक लाइन कॉमन आएगी. हाँ, ये एक जो कॉमन लाइन जो उन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रही है, ये वाली लाइन, ये जो चारों पॉइंट से पास हो रही है, वो लाइन हमने काउंट ही नहीं की, इसीलिए ये +1. ठीक है, तो समझो आपको टोटल 100 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से एक्सप्लेन करो
उसमें से 50 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम पहले बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर पॉसिबल 100 into 99 upon 2, that is 50 into 99. इतने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पॉसिबल है, लेकिन उसमें से 50 पॉइंट्स कोलिनियर है। 50 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब क्या है कि हमने ये जो काउंट किया, इसमें 50 पॉइंट्स में से पास होने वाले जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स है वो एक्स्ट्रा काउंट हो गए। हमने उन पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर कंसीडर करके ये सॉल्व किया। तो जो कोलिनियर, जितने कोलिनियर पॉइंट है उतने नंबर ऑफ लाइंस, उनमें से दो दो पॉइंट में से पास होने वाले नंबर ऑफ लाइंस हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ओके, इतना जो पार्ट है n into n minus 1 upon 2, इसमें एक्स्ट्रा काउंट क्या हुआ, हमने ऐसे अज्यूम करके किया इसको कि एक्चुअली m पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर ओनली, और सारे नंबर ऑफ लाइंस हमने काउंट कर लिए, लेकिन हमें पता है कि m पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके कारण जो भी नंबर ऑफ लाइंस विच विल पास थ्रू m पॉइंट्स, दे आर एक्स्ट्रा, उनको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने m into m minus 1 upon 2 को माइनस किया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस 50 into 99 आएंगे, लेकिन 50 पॉइंट्स कोलिनियर होने के कारण 50 into 49 upon 2 इतना हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 100 into 99 upon 2। अभी सबट्रैक्ट करने के कारण क्या हुआ, वो जो 50 पॉइंट्स है उनमें से खुद एक लाइन जो पास होता है सारे पॉइंट में से कॉमन, वो हमने काउंट ही नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे +1 करते हैं। अभी समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो ये एक बहुत डीप में पॉइंट है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। हाँ तो बोले हैं, कैलकुलेशन मत करते बैठो हिंदवी। एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको समझना जरूरी है। ओके। सर हाँ, सर यहाँ पे तो एक लाइन है ना, तो वहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट 3 पॉइंट है ना, तो उसे लाइन सेगमेंट क्यों लिया? नो नो, नंबर ऑफ लाइंस ही है, अभी हमारा डिस्कशन नंबर ऑफ लाइंस का ही चल रहा है। रीजॉइन द मीटिंग व्हेन द मीटिंग एंड्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट लाइन सेगमेंट हियर बेटा। लाइन सेगमेंट के लिए ये फिक्स फॉर्मूला है, n into n minus 1 upon 2, वो पॉइंट्स कोलिनियर हो या ना हो, ठीक है। ओके सर। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है।